Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. So, any doubt, any question? No, sir. Okay, all right. So, in study paper, I think one question left. We will complete that, then we will proceed for next paper. In 2 marks, what remains? Rate change we had done. Next is determine whether function increasing or decreasing. Okay. Yes, sir. Wait a minute. Hmm. Function is given x equals to minus pi by 2 plus sin x. We have to check whether this function increasing or decreasing. Interval is given on minus pi by 3 to pi by 3. Pi by 3. Okay. So to verify it, first all of differentiate this. F dash x, constant derivative 0, sin x derivative cos x. Minus And this x. is the region of fourth quadrant and first quadrant. This is the line of 60 degree and pi by 3. And this is the line of minus 60 degree and minus pi by 3. And Sir, in आपने this फर्स्ट region, वाला cos x पूछा positive. Hello. माइनस एक्स बाय टू है सर वो क्वेश्चन में. क्वेश्चन में माइनस एक्स बाई 2. Pi by 2 is there, no? Minus x by 2. मैं एक्चुअली गलत क्वेश्चन देख रही थी, सॉरी. Okay. Yes. So it is printing error. Okay. Anyway, so here minus x by 2 have to take. Okay. So it become minus 1 by 2. Okay. So for this, first of all, find the critical point. Minus 1 by 2 plus cos x equals to 0. Then cos x equals to 1 by 2 means cos x equals to cos pi by 3. X equals to pi by 3. So critical point existing at the boundary point and it being 0 at boundary point. Okay. So rest all of cos x will be less than 1. Is this? Its critical point not coming. Okay. Minus pi by 2, pi by 2. It will be positive. Okay. For remaining value. सर नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो.
I'm saying it will be positive. F dash x will be greater than 0 for open interval minus pi by 3 to pi by 3. Yes, Is sir. this? This will be greater than 0. So we decide that this function is strictly increasing in the given interval. This implies our conclusion is the given function is strictly increasing. Okay? ओपन इंटरवल है तो स्ट्रिक्टली वर्ड हम यूज कर सकते हैं. Strictly increasing on minus pi by 3 to pi by 3. Any doubt? Clear है sir. All right, okay. This next question is choice is there or function is given. We have to find the interval in which it is increasing or decreasing. So fx equals to 4x cube minus 6x square minus 72x and plus 30. Okay. So let us differentiate it. Then f dash x is equals to 12x square minus 12x minus 72. Take 12 common. Then x square minus 12 minus x and minus 6. Is it? And then 12, its factor will be x minus 3 and x plus 2. Is this okay? Now critical point f dash x equals to 0, then x equals to 3 and minus 2. Make the number line and check where f dash x is positive, negative. So it is 3, it is minus 2, somewhere 0 will lie. Okay. So there are 3 regions. In each region we have to check. At 0 it is negative between 2 and 3. Okay. It will be negative here. And less than minus 2. It will be negative, so it becomes positive. And for more than 3, it is also both positive. Therefore, we conclude that f dash x is greater than 0 in minus infinity to minus 2. Take it close because increasing asked. Okay. Union 3 to infinity. Therefore, f is increasing on minus infinity to minus 2 union 3 to infinity. All right. ये पार्ट क्लियर हुआ? हेलो. Yes sir, clear है. नेक्स्ट पार्ट के लिए लिखेंगे एंड f dash x
is less than 0 or equal to 0 for all x belongs -2 to -2 to 3. Therefore, f is decreasing on -2 to 3 over. All right, bete? Yes, sir. Any difficulty? Clear, sir. All right, bete. So next question is there. What we have to find for that? Integration. Integrate the function. Function given and that fx is equals to e power x into sin x plus cos x. You have to integrate means you have to find fx dot dx. Okay. Generally, this type question not give. They give directly in sign of integration. Evaluate or find. They will write question like this: sin x plus cos x. If not written, then we should understand integration means dx will come automatically and sin. And here we considering it fx and sin x derivative is cos x. So by using the formula e power x fx plus f dash x dx equals to e power x into fx plus c. Okay. So it will become, our answer become e power x sin x plus c. Got it? Yes, sir. One more question from probability. We had done this. This is the section C question. We had done. One more question there. Prove that function f fx equals to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on interval -1 to 1. -1 to 1. We have to prove it. It is neither strictly increasing nor strictly decreasing. Means we have to show that it is once increasing, another time decreasing. So let us check it. So derive it. F dash x equals to 2x minus 1, and while putting equal to 0, we get critical point x equals to 1 by 2. Okay. So our interval is -1. Here somewhere 0. Here we got critical point 1 by 2, and it is boundary point 1. Here open interval will be there. Okay. So we had two interval, this and this, 1 -1 to 1 by 2. Okay. Another interval and 1 by 2 to 1. Okay. So we have to check behavior of function in these two interval.
So while putting 0 in this function, 0 belongs in this function. Okay. So we will put 0, then this is decreasing. F dash x is less than 0. Here sign is negative, here sign is positive. Okay. Yes, sir. 3 by 4 we can put and check. 3 by 2 minus 1, 1 by 2 will remain positive. F dash x is less than 0 for all x belongs minus 1 to 1 by 2, and f dash x is greater than 0 for all x belongs 1 by 2 to 1. Okay. Therefore, function f is once decrease in minus 1 to 1 by 2, which is subset of minus 1 to 1, and then increase in 1 by 2 1, which is again subset of minus 1 to 1. Therefore, f is neither increasing, neither strictly increasing, neither strictly increasing, nor decreasing in given interval minus 1 to 1. Got it? Because Yes, of f is once decrease, then increase. So overall, in overall interval, it will neither increase nor decrease. Okay? Understood? yes, sir. So let us check. Both paper have done. MCQ, any doubt is there? Any MCQ have to ask? Sir, एक मिनट, I'll go check again जो मैंने कंप्लीट किया. हाँ बेटे. सर एक मिनट चेक कर रही हूँ. हाँ, एट अ ग्लांस देख लो. किसी एमसीक्यू को कुछ करना हो तो बताओ. सर 7th वाला. Seventh implication, which of the following is convex set? Convex set, you know, concave. सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है. सर you're not audible. You're not audible, sir.
So I have asked its the general solution. So सर how will you आपकी start? सर Hello. सर आप 5 मिनट को बीच में चले गए थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही अभी भी, और टेक्निकल प्रॉब्लम होगा बेटे। सर तो कॉनकेव वाले क्वेश्चन हाँ। पे थे, और सर आपकी स्क्रीन अभी भी लोड नहीं हो रही है। कॉनकेव वाले क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे सर बेटा, वो अभी कुछ कंफर्म हमको खुद नहीं हो रहा है, तो हम अभी आपको क्या बताएं, ठीक है? तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कॉनकेव वाले क्वेश्चन को, ठीक है? तो डिवाई बाई डी एक्स, ये डी सर देख लो। आपकी स्क्रीन लोड नहीं हो रही है। बेटे नेट का कुछ इश्यू चल रहा है, अभी वो सही हुआ है बता रहे हैं, तो अब नहीं सर एक होगा बार अभी, स्क्रीन ठीक स्टॉप ऑन करके वापस रीशेयर कर लो, क्योंकि आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। नहीं सर, नहीं दिख रही है। एक सेकंड हम फिर से शेयर कर रहे हैं। तो पूरा चला गया जितना हम लिखे थे। अभी दिख रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है। सर इसको आपने मतलब दोबारा वो किया? हाँ। हेलो हेलो, क्या करना पड़ेगा इसको? क्लास लॉग आउट करके लॉग इन करना। मैं उनको बोलता हूँ अक्षता की आ रही है। हाँ इस तक यार आवाज हमारी भी जा रही, स्क्रीन नहीं दिख रही। आवाज आ रही है, दिख रही है। करके मत जो देखिए। सेव एग्जिट करके वापस शेयर करो। दोबारा किया। रिज्यूम प्रीवियस आ गया? अब दिख रहा है? अब दिख रही है सर। चलो ऑल राइट बेटे, अभी दिख रहा है? यस सर, दिख रही है। चलिए तो एक डी है, उसको हम कल के वाले क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटे, ठीक है? ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके? सर, सो ये डिवाई क्वेश्चन बाई डी एक्स। हाँ बेटे, ये क्वेश्चन पेपर से, अच्छा हाँ मिल गया। हाँ बेटे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई एक्स एंड प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, ओके? सो वाई बाई एक्स को भी पुट कर देंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? y इक्वल टू वी एक्स हो गया, डीवाई बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स, ओके? सो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, ओके? So let us substitute all value, v plus x dv by dx equals to 1 plus v square, all right? v से v दोनों साइड कैंसिल कर देते हैं, v से v कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हमारे पास dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस v स्क्वायर। ना उस वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, dv बाई 1 अपॉन v स्क्वायर
इक्वल टू dx अपॉन x। अब क्या करेंगे, अब बेटे इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x। ओके, सो tan इनवर्स v इक्वल टू log x प्लस c। तो v की जगह क्या लिखना है, y बाई x। ऑप्शन चेक कर लो बेटे, कुछ अगर अलग ऑप्शन दिया हो तो हम उसमें मैनेज करेंगे। ये ऑप्शन अवेलेबल है, tan इनवर्स y बाई x log x प्लस c, या करेक्ट है? ठीक है बेटे, Yes, sir. और कोई करा दूं? असर्शन रीजन चेक कर लो एक बार। 19 क्वेश्चन, absolute maximum value of this is 89। फंक्शन क्या दिया है, कैसे करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा देख लो। फर्स्ट ऑल ऑफ क्लोज इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का देखा जाता है बेटा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा कहाँ देखा जाता है, एक क्लोज इंटरवल में देखा जाता है, और फंक्शन गिवन है 2x क्यूब माइनस 24x। ओके, तो इनके क्रिटिकल पॉइंट तो हम निकालते हैं, और उसके साथ बाउंड्री पॉइंट पे भी वैल्यू चेक की जाती है, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन होता है। ठीक है बेटे, ये फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड। तो लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे दोनों पे हमारा फंक्शन देखा जाएगा, और साथ में मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे भी देखा जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 24 एंड दिस इज इक्वल टू 0, देन 6 डिवाइड x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स चेक कर लो, एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव 8, x इक्वल टू प्लस 2, एंड एफ डबल डैश एक्स निगेटिव 8, x इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 पे मैक्सिमा है और प्लस 2 पे मिनिमा है, ये मिनिमा है, और ये क्या है, मैक्सिमा है। ठीक है बेटे, अब हमको एब्सोल्यूट बताना है, तो एब्सोल्यूट में क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, f1 f2 f माइनस 2 एंड f3। फंक्शन हमारा क्या है, fx है हमारा 2x क्यूब माइनस 24x। ठीक है, यही है ना, हाँ। तो इंटरवल हमारा 1 to 3 है, 1 to 3, और क्रिटिकल पॉइंट है 2 और माइनस 2, ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, 2 पे मिनिमा है, माइनस 2 पे मैक्सिमा है, तो वो लोकल हो जाएगा अगर सबसे बड़ा। अब ये चार वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, और चारों में जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। Yes, sir. 1 पुट करने पे क्या, 1 पुट करने पे क्या मिलेगा बेटे हमको, -22, 22. -22, और 2 पुट करने पे माइनस में ही मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, 48 अब -16, 32। -32. ऑलराइट, और +2 पुट करने पे कितना मिलेगा हमको, +2 पुट करेंगे तो ये आएगा अगेन
टू तो +2 तो रख दिए ना, -2 रखना है। तो ये -16 एंड +48, तो ये आ गया हमारा +32। +32 आ गया, ठीक है। तो ये +32 जो है वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगी, लोकल मैक्सिमा। अभी देखते हैं 3 में कितना आएगा। 3 में फिर 27 इंटू 2 54 एंड -24 इंटू 2 72। ओके, ये भी निगेटिव ही आएगा। 12 - 4 8 एंड 6 -18 आएगा। ओके बेटा, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा की वैल्यू यही लोकल मैक्सिमा नहीं होकर के यही एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो Yes. सबसे बड़ा हो। ओके, तो क्वेश्चन में 89 दिया है तो वो तो फाल्स हो गया, ठीक है। Yes. क्लियर हो गया? असर्शन इज फॉल्स। और रीजन में क्या देना है? रीजन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट। तो रीजन का ही का, तो रीजन में जो लिखा वही काम तो हम कर रहे थे। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, उन पे हमने चेक किया और बाउंड्री पॉइंट पे भी चेक किया। तो रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ओके, तो कौन सा सही हुआ ऑप्शन बेटे? D, sir. डी ऑप्शन इज राइट। यस, तो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है असर्शन रीजन के क्वेश्चनों में, एकदम एग्जैक्टली नहीं मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो कभी कभी कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? असर्शन इज गिवन fx equals to x square plus bx plus c. fx equals to x square plus bx plus c. All right, where b, c are real constant. Okay, no problem. Describe onto mapping. Okay, function is describe onto mapping. तो डिग्री 2 का है, क्वाड्रेटिक है, onto हो ही नहीं सकता, ठीक है। रीजन में क्या है? रीजन में देख लेते हैं पहले। इवन डिग्री का फंक्शन onto नहीं हो सकता, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला ऐसे घुमा देगा ना, तो नीचे के एलिमेंट नहीं अनमैप्ड रह जाएंगे। ओके, हालांकि इसने डोमेन को बात नहीं किया, डोमेन को डोमेन क्या लेता है वो देखता हूँ। लेट a equals to 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यार मीन्स नेचुरल नंबर ले रहा है। एंड b equals to a एंड b। अच्छा, ये करली सेट a एंड b, इंटरवल नहीं है, ठीक है। देन नंबर ऑफ सर्जेक्शन इज 2 पावर n -2। हाँ, ये वाला रीजन सही है। देखो, नंबर ऑफ सर्जेक्शन इज 2 पावर n। देखिए, इधर का ईच मेंबर कितने तरीके से एसोसिएट होगा? 2 तरीके से। देखिए ऐसे 1 2 3 3 4 एंड सो ऑन n, ये सेट ए है।
ठीक, और सेट बी में ए और बी। तो ईच मेंबर को एसोसिएट होने के दो तरीके हैं बेटे, या तो वो ए से कनेक्ट हो सकता है या बी से कनेक्ट हो सकता है। तो एक नंबर को कनेक्ट होने के दो तरीके, तो n नंबर है तो दो दो तरीके सबके हो गए। कितने टाइम? n टाइम। ओके, यस तो ये 2 पावर n हो गया। और इसमें से दो तरीके ऐसे हैं जो ऑन2 पे नहीं आएंगे। देखिए अभी तो ये सब ऑन2 पे हो गए, ये इससे कनेक्ट हो गया, 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 तो अभी तो सब ऑन2 दे रहा है। लेकिन दो तरीके हैं जब ऑन2 नहीं होगा, वो कौन से तरीके हैं ये देख लो। एक तरीका तो सारे ए से कनेक्ट हो जाए, बी छूट जाए, सारे के सारे किससे कनेक्ट हो जाए? ए से, तब ये ऑन2 नहीं है, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन n। अब की बार ए छूट जाए, बी से सारे के सारे कनेक्ट हो जाए। तो दो सिचुएशन में ये ऑन2 नहीं हो रहा है, बाकी के सारे सिचुएशन में ऑन2 होगा। तो टोटल फंक्शन कितने हैं? 2 पावर n, और उनमें से नॉट ऑन2 मतलब नॉट सर्जेक्शन। नॉट सर्जेक्शन कितने हैं? 2। तो सर्जेक्शन कितने हो गए? 2 पावर n माइनस 2। इसमें 2 पावर n माइनस 2 आएंगे, ठीक है, ये सर्जेक्शन हो गए। ठीक है, दो केसेस थे, वन केस ये और वन केस ये, जहां पे ये सर्जेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ऑन2 नहीं हो रहा है। और टोटल केस ये है 2 पावर n। तो टोटल फंक्शन कितने, टोटल ऑन2 फंक्शन कितने हो गए? 2 पावर n माइनस 2। तो रीजन अगेन करेक्ट है, असर्तन अगेन रॉन्ग है। असर्तन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 का, इवन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो वो कभी ऑन2 नहीं देगा, ये बात ध्यान दीजिए। डिग्री 4 का, डिग्री 2 का, डिग्री 6 का, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत बेटे इसको समझने में? क्लियर है। तो दोनों केसेस वो असर्शन रीजन भी हमने करा दिए हैं, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, सो आंसर इज डी। ओके, क्लियर बेटे? यस सर। और देख लो अगर क्लास कोई क्वेश्चन पूछना है तो, नहीं तो फिर नया पेपर दे दूंगा। वही एक क्वेश्चन बच रहा है हमारा, जो काम के वाला है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये 6th वाला हो जाएगा आपको? सिक्स वाले में क्या कह रहा है? व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री? स्क्वायर करना पड़ेगा ना। व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? ये बन जाएगा आपसे? सॉल्यूशन गिवन है cx प्लस सी स्क्वायर माइनस 3c पावर 3/2 प्लस 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? कितने ऑर्डर और कितने डिग्री की इक्वेशन रही होगी तो ये सॉल्यूशन आया होगा? सर डिफरेंशिएट कर देंगे ना। डिफरेंशिएट तो कर देते हैं, चलो डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू इक्वल्स टू cx। dy बाई dx इक्वल्स टू c। ठीक है, बाकी सारे कांस्टेंट है, उन सबका डिफरेंशिएशन
0 हो गया। तो इसका ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। और डिग्री के लिए क्या करेंगे, हर जगह c की वैल्यू रखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और -3 dy बाई डी एक्स की पावर 3/2, ठीक, और +2। सबको इधर उधर करने के बाद इस 3/2 का अपान 2 भी हटाना पड़ेगा ना। तो इसको लेफ्ट में ले लो, 3 dy बाई डी एक्स पावर 3/2 इक्वल टू x dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स पावर 2 एंड माइनस y प्लस 2, ठीक। अब इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यस जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे इसमें, एक तो ये हमारा हट जाएगा बेटे, 2 हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने पे, और इधर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। यहां जो 3/2 था वो 2 हट गया, ठीक है, और ये आ गया। यस अब जब हम स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला टर्म हमको पावर 4 देगा, dy बाई डी एक्स पावर क्या देगा, 4 देगा। तो हाईएस्ट पावर यही हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमको क्या मिला अल्टीमेटली, डिग्री ऑर्डर इज 1, ऑर्डर इक्वल टू 1, डिग्री इक्वल टू 4। ऑप्शन में है कहीं कुछ, है तो सही सर। ऑर्डर डिग्री। तो क्लियर हुआ, आपने बिल्कुल सही बताया कि डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो c की वैल्यू मिल गई dy बाई डी एक्स, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक है। और देख के Yes. बताइए कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो। और तो हमने अपने हिसाब से इसको करा लिया, असर्शन रीजन करा लिया हम, और कौन सा डिफिकल्ट दिखता है। वेक्टर के क्वेश्चनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है सर वो तो। और एलपीपी वाला 1-2 क्वेश्चन होगा, उसको देख लेना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल देना, ठीक है। देख लो एक बार डायग्राम समाते हैं। कुछ है बेटा पूछने लायक, नहीं नहीं पूछना है, चलिए कोई नहीं। चलिए फिर हम एक सेट और लेते हैं। अब की बात बोर्ड का सैंपल पेपर लेते हैं, ठीक है, पीवाईपी का, उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भेजता हूं, 1 मिनट वेट करो। चलो।
एक भेज रहा हूं पीवाईपी में। और इसको देखो और बताओ कहां से स्टार्ट किया जाए इसको। एक भेजा हूं मैं, देखिएगा। कहां से स्टार्ट किया जाए, एमसीक्यू से किया जाए कि लॉन्ग आंसर से? सर लॉन्ग आंसर से करते हैं। लॉन्ग आंसर से बिगिन किया जाए। यस। चलो फिर सेक्शन डी पे पहुंच चलते हैं। लॉन्ग आंसर करते हैं, उसके बाद केस स्टडी करते हैं, उसके बाद 3 मार्क्स 2 मार्क्स। हाँ बेटे। तो पहला ही क्वेश्चन है सेक्शन डी का। चेक वेदर रिलेशन एस on the set of real number defined by a is less than b. रिलेशन कहां डिफाइन है? यस ऑन रियल नंबर, ओके, डिफाइंड बाई a comma b such that a is less than b cube. Okay. Each reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव तीनों चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों चेक करना। चेक वेदर ओके। क्या करना है हमको? चेक करना तीनों। तो a इज लेस देन a क्यूब, ऑलवेज नॉट ट्रू। ट्रू है सर। तो a does not belongs in S, या a not related to a, okay, or we can write a does not। क्यों ऑलवेज नहीं ट्रू होगा? 0.1 फ्रैक्शनल नंबर, a belongs in real number, a Yes, belongs sir. in real number, तो 0.1 is not less than or equals to 0.1 क्यूब। एक एग्जांपल आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? आप पूछ रहे हो क्यों नहीं होगा, सही है, ठीक है, बट एक किसी भी रिलेशन के ना होल्ड करने का एक एग्जांपल ही दिखाना है, ठीक है? यस सर। और किसी भी रिलेशन के होल्ड होने का जनरलाइज करना है फॉर ऑल एलिमेंट के लिए, ठीक है? सो दिस इज नॉट लेस देन, ओके। सो 0.1 कामा 0.1, ये तो हम एक एग्जांपल लिए हैं। 0 से -1 से 1 के बीच का सारा भी नंबर जितना होगा वो लेस नहीं होगा, ठीक है? 0 से 1 का डज नॉट बिलोंग्स इन एस, ठीक है? देयरफॉर यस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट, ओके, गॉट इट? सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता। यस सर।
genuine है, it is clear, it is very clear, yes, could not be symmetric, could not be symmetric. लेकिन लिख देने से काम नहीं चलना है, एक एग्जाम्पल दिखाना है. तो कौन सा एग्जाम्पल ले लें हम? ऐसा एग्जाम्पल लो तो 9 का मत नहीं 9 का मत 2 ले लेंगे तो कैसे हो जाएगा? लेस आना चाहिए, मोर हो जाएगा. 7 का मत 2 ले लो, belongs in S, that is 7 is less than or equal to 2Q. ट्रू है ना? ये ट्रू है ना? ट्रू. Yes. बट 2,7 नहीं ये होल्ड कर जाएगा, ये होल्ड कर जाएगा. सोचो कोई एग्जांपल. 1,2 2,1 ही ले लो. हाँ 1,2 2,1. 1,2 ले लेते हैं तो ये बिलोंग्स इन एस. तो 2,1 ये नहीं बिलोंग करेगा, करेक्ट है. डज नॉट इन बिलोंग एस. 1 is less than 2Q. This implies 1 is less than or equal to 8, but 2 does not less than or equal to 1Q. Okay. Therefore S is not symmetric. Therefore S is not symmetric. Got it? तो थोड़ा सा जब वेरीफाई करना होता है, जस्टिफाई चेकआउट करना होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी नॉट होल्ड करने में अपना दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है. ट्रांजिटिवली आ जाओ. तो एक तो 1,2 ही रखते हैं, ठीक है, और एक 2 से 3 कर ले. नहीं जो होल्ड ना करे ऐसा सोचना है. इसको कैसे सोचे हम? 1,2 से काम नहीं चलेगा. सर आई थिंक अब बड़े से छोटे जाना पड़ेगा. वो 1 2 करा ना. बड़े 7 2 यहाँ ले लो और 2 2 3 ले लो. नहीं 2 से 1 ले लो सर. अच्छा वो 2 नहीं से है. 1 तो फेल हो जाएगा, तो आएगा ही. 3 ले, यहाँ और बड़ा नंबर डाल देते हैं ना. फिर यहाँ पे बिगनिंग में और बड़ा नंबर डालते हैं. इसमें 9 to 3 ले लेते हैं, ठीक है, और 3 to 2 3 to कितना ले लें? 2 ले लें. 2 ले. हाँ ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं. दिस बिलोंग्स इन एस एंड आल्सो बिलोंग्स इन एस. कैसे बिलोंग करेगा वो भी दिखा देते हैं. 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 3Q. ये ट्रू है. 9 इज लेस देन 27 और 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2Q 8. ये भी ट्रू है. बट 9,2 does not belongs in S because 9 is less than 2Q is false. Okay? ये ट्रू नहीं हो रहा है. Therefore R is not transitive. Therefore R is not transitive. Got it? Yes sir.
आर मीन्स यस, नेम दिया है यहाँ पे तो वही नाम यूज करो। तो कंक्लूजन में फाइनली लिख देंगे देयरफॉर यस इज नीदर reflexive nor symmetric and nor transitive। फंक्शन एंड रिलेशन के क्वेश्चन में स्टेटमेंट भर भर के लिखना बेटे, स्टेटमेंट लिखने में कंजूसाई मत करना, ठीक है। यस। और जितना टाइम फंक्शन रिलेशन आपका टाइम खाए लिखने में, उतना आप कैलकुलस में टाइम स्टेप जंप करके बचा लेना, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, मैट्रिक्स में। लेकिन फंक्शन रिलेशन के क्वेश्चन में चाहे वो 1-1 प्रूव करने को आए, चाहे अनटू प्रूव करने को आए, चाहे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन का आए, स्टेटमेंट भर भर के लिखो, डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय रीजन y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है, एंड x इक्वल्स टू -√2 एंड x इक्वल्स टू √3। तो सबसे पहले ये कर्व जो है इसको हम पूरा का पूरा ड्रा करते हैं, और फिर ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एक सर्कल है और उसका एक पार्ट है ये, ठीक है। वो पार्ट कहां से कहां है देखते हैं हम। तो ये सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, सेंटर ओरिजिन है, ठीक। तो ये सर्कल अगर हम ड्रा करेंगे यहां से तो ये है सर्कल। अब x इक्वल टू -2, बिकॉज अब रेडियस इज 2, तो ये तो -2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। -√3 यहां कहीं आएगा, -√2 यहां आएगा, और √3 कहां आएगा, यहां कहीं आएगा। समझ में आ रहा है। और ये रीजन हमें निकालना है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये एरिया निकालनी है, ठीक। क्लियर है कौन सी एरिया निकालनी है आपको? यस सर। ठीक है, दोनों ऑर्डिनेट क्लियर है। देखिए जो भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी वो ऑर्डिनेट कहलाएगी, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डिनेट क्लियर है √3 का, और ये दूसरा वाला ऑर्डिनेट भी क्लियर होगा, होप दैट -√2 का। और ये कर्व जा रहा है सर्कल का, ठीक। उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे जिसकी विड्थ dx और हाइट y। तो एरिया हमको निकालना है, तो एक ही कर्व है, अपर कर्व, लोअर कर्व में y इक्वल टू 0 है, एक्स एक्सिस। तो इंटीग्रेशन -√2 √3 और y dx, y की वैल्यू कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू -√3 टू -√2 टू √3, और ये क्या आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब इसमें कुछ है नहीं, फार्मूला केवल आपको याद रखना है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फार्मूला क्या है बेटे? इसका फार्मूला है x इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस a² बाई 2 एंड साइन इनवर्स x बाई a। यही है ना बेटे?
फार्मूला आपको रिमेम्बर है बेटे? Yes, sir. Yeah. बेटे सारे फार्मूलों का एट ए ग्लांस डेली देखा करिए, स्पेशली इंटीग्रेशन के फार्मूले और 3D वेक्टर के फार्मूले। और 3D वेक्टर में बहुत ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, सारे फार्मूले की जो ट्रिक और कंटेंट बताया है उस पर फॉलो करिएगा, ठीक है? नहीं तो 3D में बहुत सारे फार्मूले मिल जाएंगे। ओके, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए भी मेंसुरेशन वगैरह के फार्मूले देख लीजिएगा। तो ये हम पुट करते हैं यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन में। एरिया हमारा क्या है? -√2 to √3 4 - x² dx। तो ये एरिया क्या आ जाएगा हमारा? -√2 to √3, और यहां अप्लाई करेंगे तो x इंटू 4 - x² प्लस a² मीन्स 4/2 और साइन इनवर्स x/2। इज इट? इतना ही आएगा। कुछ गलत हो तो देखते रहिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 1/2, ठीक है, और प्लस 4/2 इंटू √3 पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स π/6, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल? π/3 के। तो π/3 अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट पे आ जाओ। लोअर लिमिट में लोअर का माइनस और माइनस का √2 प्लस कर दिया, √2 और 4 -√2 का स्क्वायर 2 आएगा और 4 - 2 2, √2 ही बचेगा इंटू √2/2, ठीक है। चलिए ऑल राइट, और प्लस 4/2 इंटू यहां पे आ जाएगा माइनस, लोअर लिमिट में चल रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? साइन √2/2 यानी 1/√2 यानी कि π/4। देखिएगा ध्यान से, -√2/2, तो ये तो माइनस बाहर कर लेंगे, साइन 1/√2 बचेगा ये। और फार्मूला कौन सा यूज हुआ है? साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, ठीक बेटे? क्लियर है चीजें? और लोअर लिमिट में है, लोअर लिमिट में इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। कुछ स्टेप हम डायरेक्ट किए हैं, इस जगह पे प्लस कर दिए हैं बेटे डायरेक्ट, क्योंकि एक लोअर लिमिट का माइनस आएगा और एक साइन इनवर्स का माइनस आएगा तो प्लस हो गया। और इस जगह पे भी डायरेक्ट प्लस किए हैं, एक लोअर लिमिट का माइनस आएगा और एक -√2 का माइनस आएगा तब भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो। Clear है sir. कोई डाउट नहीं? तो सिंप्लीफाई करना जाए तो यहां पे कैंसिल हो गया 2 और ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बच रहा है हमारे पास? हमारे पास बच रहा है √3/2 प्लस 1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर 2/3 2π/3 और प्लस π/2, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा ऐड करके। तो √3/2 प्लस 1 और प्लस ये कितना पाई आ जाएगा? 437 π/6 स्क्वायर यूनिट। देखो नीचे आंसर दिया है क्या? पीडीएफ में देखो नीचे जाके आंसर दिया, और आंसर दिया हो तो वेरीफाई कर लो। दिया होना चाहिए क्योंकि 43 पेज का है।
एब्सोल्यूट राइट है बेटा, एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट डायग्राम है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, आपको लिमिट सेट करने में कोई दिक्कत हो तो बोलो, अपर लिमिट अप्लाई करने में, लोअर लिमिट अप्लाई करने में, क्योंकि हमने Clear. काफी कैलकुलेशन स्टेप बचाने के लिए मेंटल कैलकुलेशन किए हैं बेटे, और ये चलेगा, क्योंकि अगर हर स्टेप लिखने लगोगे तो फिर टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और हम 12th के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं जो फाइनल मोड में हो, मतलब कि एग्जाम के मोमेंट पे कि हम हर स्टेप लिख के करें। आधा कैलकुलेशन तो मेंटल होना ही चाहिए। ठीक है, तभी उस स्टूडेंट ने 12th तक मैथ पढ़ी है। होप दैट आपको समझ में आया। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर है सर। ऑल राइट बेटे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटे, इसमें सेक्शन डी में इसी का चॉइस है। वंस अगेन से क्या और एरिया अंडर कर्व है। तो पेपर सॉल्व करने से आप देख रहे हैं कि इंटायर सिलेबस एक राउंड हो जाता है। अब चैप्टर वाइज ठीक है, चैप्टर वाइज हमको समझ में आता अच्छा होता है, लेकिन चैप्टर वाइज उसके लिए होता है जिनका सिलेबस अच्छे से नहीं कवर्ड है, और जिनका सिलेबस कवर्ड है उनको पेपर टू पेपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है बेटे, उससे 2 या 3 दिन में पूरा सिलेबस एक राउंड हो जाता है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन इवेलुएट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। क्या क्या गिवन है बेटा? कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ऑर्डी एब्सिसा गिवन है। पिछली बार ऑर्डिनेट गिवन थे, इस बार एब्सिसा गिवन है। ये बात ध्यान रखो, कोई भी लाइन कभी एब्सिसा और ऑर्डिनेट करके बोल सकता है एग्जाम में। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। बेटे आपको ग्राफ पहले ड्रा कराऊंगा मैं। ये पैराबोला आपका ये वाला है, हाँ ये वाला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, यही है ना? हाँ, और एब्सिसा कौन कौन दे दिया है? ये दे दिया, एक y इक्वल टू 1 दे दिया एब्सिसा, और दूसरा एब्सिसा y इक्वल टू 3। तो बेसिकली ये तो सिमेट्रिक भी होगा बेटे, होगा कि नहीं होगा? ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा, जितना लेफ्ट में एरिया है उतना ही राइट में होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये पैराबोला है, पैराबोला में वाई स्क्वायर लगा है, तो ये रेड और येलो वाला एरिया बराबर होना चाहिए। तो एक तरफ का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, चलेगा? यस सर। तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊंगा ये ग्रीन से, तो ये x और ये विड्थ dy, ठीक, और लिमिट होगी इंटीग्रेशन की 1 से 3, और पूरा पैराबोला पे ही रहेगा। तो देखिए ध्यान से, डायरेक्ट लिखते हैं, ट्वाइस x dy और लिमिट 3 से 1 से 3। ओके, इतना सिंपल है ये अंडरस्टैंडिंग के बाद। 1 2 3, और y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू रूट वाई आ जाएगा। ठीक है, तो रूट वाई डॉट डी वाई। गॉट इट? कोई हेजिटेशन, कोई घबराहट, कोई डाउट तो बोलो। क्लियर है। अब सिंपल इंटीग्रेशन है बेटा, तो 2 इंटू 2/3, ये हो गया y की पावर 3/2, y पावर 3/2, y रूट y लिख लू, कोई दिक्कत तो नहीं है? और 2/3 को हमने बाहर कर लिया जो डिनोमिनेटर में होता, अपर लिमिट 1 to 3, so it become 4/3, 3√3 - 1। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, नहीं तो पढ़ा रहने दो यहीं पे आंसर। स्क्वायर यूनिट
चेक कर लो इसका भी आंसर नीचे जाके पीडीएफ में। और कहीं स्टिल डाउट हो तो बोलिएगा। सर आंसर में 2/3 है। आंसर में 2/3 आया है, उसने एक पार्ट का लिया है। कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट या ऐसा कुछ बोला है? x=0 तो नहीं दिया क्वेश्चन में, वो डबल करना था इसलिए हमारा 4 आ रहा है। इसने डबल नहीं दिया क्या, एक ही पार्ट का सेट किया है। सर एंड तो y एक्सिस के साथ बोला है। बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ, थरोली कर लो, क्वेश्चन को देखना पड़ता है बेटे। हाँ एंड द वाई एक्सिस बोला है, ऑलराइट, एंड द वाई एक्सिस बोला है, तो ये रेड वाला जोन खत्म कर देता हूं मैं, ये निकालना ही नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये 2 यहां से एलिमिनेट हो गया, ये 2 यहां से एलिमिनेट हो गया, एक 2 गायब कर दो, तो ये हो गया 2 आपका बेटा। अब ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। क्लियर है सर। चलो 3D का क्वेश्चन ले लेते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। चलिए, हमारा इच्छा था कि इस टाइप का क्वेश्चन आप करो, आ गया है, क्योंकि अभी तक वेक्टर फॉर्म में दिया रहता था तब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते थे, अब की कार्टेशियन दिया है तो कराएंगे आप ही। पहले चेक करो लाइन कार्टेशियन में प्रॉपर लिखी है कि नहीं। z-10/7 ये L1 है, लैम्डा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहो तो ले लो, शॉर्टेज डिस्टेंस में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। L2 क्या हो जाएगा आपका, L2 प्रॉपर नहीं दिया गया तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर तरीके से लिखूं, नहीं L2 भी तो प्रॉपर ही दिया है ना। हाँ वो हमारा थोड़ा सा इल्यूजन हो रहा है विजिबिलिटी का लाइट के कारण। तो y-29/8 equals to z-5/-5। So both line are in proper form. कार्टेशियन में टेंशन देना होता है कि लाइन प्रॉपर फॉर्म में कब कहलाती है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 हो। अब चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, a2 - a1 इंटू डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। तो आप हमें पहले a2 - a1 निकलवाइए। a2 - a1 कितना आ रहा है, जल्दी से बोलिए। a2 - a1 क्या लिखे, कार्टेशियन में पहचानिए और बताइए। 7i क्या 7i का है 38 नहीं 1 मिनट 20 j कैप प्लस y20, एक में माइनस है दूसरे में प्लस है ना, यस तो सर 29 माइनस माइनस 9, 29 माइनस माइनस 9, यहां से आपको वेक्टर a1 मिलेगा और यहां से आपको वेक्टर a2 मिलेगा। ठीक है, यस सर हाँ ये क्लियर है ना, ये x1, ये y1, ये z1 और ये x2, ये y2 और ये z2। तो ये कितना आ जाएगा, +38 आ जाएगा। एंड जेड में कितना आएगा, -5k। 5 इज इट यस सर क्लियर है,
B1 क्रॉस B2 लिखाओ जल्दी से हमको। B1 क्रॉस IJK B2 minus ये जगह हम 7 B1 क्रॉस to 8 minus करेंगे इक्वल टू IJK। चलिए B1 बोलिए क्या लिखे हम? 3 minus 16 and 7. अब तो नहीं प्रॉब्लम होती। नहीं सर। हाँ पहचान लेते हो ना? These are the B1, these are the B1 and these are the B2. ओके तो 3D फार्मूला से ज्यादा विजुअलाइज करने की चीज है बेटा। 3D को विजुअलाइज करो, फील करो। फार्मूले कम है उसमें, फार्मूले तो सारे के सारे वेक्टर वाले काम कर जाते हैं। ठीक है। और कन्वर्जन अभी तो प्लेन हटा दिया, नहीं तो थोड़ा बहुत और बढ़ता है। अभी तो लाइन पे ही सिमेट दिया ना लाके। आई का कोफिशिएंट कितना आएगा? प्लस में 80 और माइनस में 56। सही कर रहा हूं? चेक करते रहो। 4 7 minus 5 2 24 आई। इज इट? Yes sir. माइनस जे तो ये गया -15 -21 -21 -15 सो -36 माइनस प्लस 36 इज इट? प्लस के सो ये गया 24 प्लस 48 तो 2 6 1 7 72 प्लस 72 के। सही है सब कुछ? Yes sir. कुछ कॉमन है? 12 12. कॉमन निकाल लेने से मैग्नीट्यूड की आराम से निकल आता है। 2i नहीं 2i 3j 6K. और प्लस 6k। K. ये क्या हो गया? B1 क्रॉस B2 हो गया। अब मैग्नीट्यूड में ये जगह बता दो हमको। मॉड B1 क्रॉस B2 जो बाहर है उससे कुछ मतलब ही नहीं है, उसको ऐसे ही लिखा रहने दो। Yes तो sir. ये हो जाएगा 12 इंटू 7 आएगा आई थिंक 49 आता है। 36 प्लस 4 36 का स्क्वायर 36 और Yes, प्लस sir, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 तो ये 49 आता है। 49 का रूट 7 आता है तो 12 7 जा 84 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है। Yes sir. 12 7 जा 84। मैग्नीट्यूड भी हमारा आ गया 84। अभी कोई जगह बना सकता हूं करने के लिए, मैं सोच रहा हूं यही हो जाए। डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा? डॉट प्रोडक्ट बताइए हमको। 12 को बाहर ही रहने दीजिए क्योंकि वो हर जगह कॉमन हो जाएगा मल्टीप्लाई में भी। तो A2 माइनस A1 डॉट न्यूमेरिकल कितना आएगा? देखिए 12 इंटू ब्रैकेट तो 7 इंटू 24 ये कितना हुआ बेटे? नहीं 7 इंटू 2 14 24 पे क्यों मैं देख रहा हूं। ठीक है। और 3 इंटू 38 कितना होगा बेटे? 8 3 जा 24 9 11 114। चेक कर लो एक बार, मार्क करते चले। देखो ये 2 का मल्टीप्लाई 7 में हुआ, Yes sir. 3 का मल्टीप्लाई 38 में किया, टेबल चेक कर लो। और 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर रहे हैं तो -30। ऑलराइट तो 12 इंटू ये कितना आ गया? 14 14 28 30 तो 98 बच जाएगा। As per these calculations, yes sir. 98 ही बचेगा तो Yes, sir. 128 और अगर इसमें 2 प्लस कर देंगे तो ये 30 हो गया, फिर 100 बचेगा। 2 बढ़ाए थे तो 2 कम कर देंगे 98। ठीक। Yes sir. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका नीचे 84 तो ये 12 7 84
98 7 की टेबल में आता है। Yes, sir. हाँ 14 7 जा 14. 14 यूनिट। देख पाए आप? कोई दिक्कत आप साइटेड डिस्टेंस निकालने में? Clear है sir. क्लियर है? चलो अभी एक क्वेश्चन और होगा, 10 मिनट का टाइम है। आजकल इनकंसिस्टेंट तो मुझे पता नहीं टायर्ड फील हो जाता है, इवन तो हम कभी टायर्ड नहीं होते क्लास लेने में। बस सर्दियों की बात है, सर्दी। हाँ सर्दी भी है, सीजन भी है, थोड़ा सा थोड़ा इनकंसिस्टेंसी है तो होता है। हाँ यस 14 यूनिट इज करेक्ट आंसर। ऑल राइट, चलिए इसका आर वाला भी कर लेते हैं लगे। हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line this. Also find the vector equation of the line passing through the intersection point and perpendicular to both line. चलो हम कर देंगे इनका काम। L1 कितना दिया है बेटे देख लो, अच्छे से लिखो। R इक्वल टू I माइनस जे प्लस 6K, ठीक, और प्लस लेमडा 3I एंड कितना है माइनस के है केवल। ऑल राइट, L2 कितना है बेटा -3J प्लस 3K प्लस न्यू। देखो अगर ब्रैकेट ना दिया हो तो आप ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट से आप सेफ रहेंगे। ठीक, हर चीजें क्लियर विजुअल हो जाएंगी। I प्लस 2J माइनस के, जहां पे जो कंपोनेंट ना हो उस कंपोनेंट का कोफिशिएंट 0 ले लेना बेटे। तो एक्स वाई जेड दो लाइनें हैं, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हमको दिया गया है, ठीक है बेटे। हमको एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारी ये है, दोनों का इंटरसेक्शन हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स वाई जेड। और ये एक्स वाई जेड दोनों लाइन से कैलकुलेट करेंगे। लाइन 1 से एक्स वाई जेड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए? लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स को ऐड करो। क्यों? क्योंकि आर जो होता है हमारा वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ठीक है। तो केवल आई वाले को आई वाले से कंपेयर करना है, जेड वाले को जेड वाले से कंपेयर करना है और के वाले को के वाले से। तो 3 लेमडा प्लस 1 करेक्ट है, एक्स की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 1। आप चेक करते रहिए, वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? जे है ही नहीं, 0 लेमडा, तो यहां से वाई की वैल्यू तो हमको डायरेक्ट मिल जा रही है -1, क्योंकि 0 लेमडा है ना, तो वाई की वैल्यू -1 डायरेक्ट मिल गई। ये काम तो अच्छा हमारा वर्क रिड्यूस कर देगा। और जेड में माइनस लेमडा प्लस 6, जेड में माइनस लेमडा प्लस 6, सर ठीक। मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर। देखो समझा रहा हूं, एक मिनट। देखिए ये आई का कंपोनेंट और यहां लेमडा आई का कंपोनेंट, यस सर। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो और इसके आई कंपोनेंट से कंपेयर करो। विजुअलाइज हुआ? यस सर। ठीक है। लेमडा को 3 में मल्टीप्लाई किया और आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ऐड कर दिया, तो 3 लेमडा प्लस 1 किसके इक्वल हो गया? एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो सिमिलरली आप वाई का देखो, तो यहां पे तो 0 जे है ना, यहां क्या है 0 जे है और यहां माइनस जे है, तो लेमडा को 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 लेमडा हो गया और माइनस जे -1 हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। वाई का कोफिशिएंट, वाई का वैल्यू -1 हो गया और जेड का क्या आ जाएगा सिमिलरली
माइनस लेमडा प्लस 6 हो जाएगा। और दूसरी लाइन से निकालो जरा बेटे, दूसरी लाइन से निकालते हैं हम। दूसरी लाइन से निकालोगे एक्स वाई जेड, वन तो इससे क्या निकलेगा? चलो आप ही बताओ, आप बताओ कितना लिखूं मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू? हाँ, म्यू माइनस, केवल म्यू, क्योंकि यहाँ पे जीरो आई है, यहाँ पे जीरो आई है, तो केवल म्यू। ठीक, और दूसरा 2 म्यू वाई माइनस का 3 क्या आएगा? 2 म्यू प्लस 3, 2 म्यू प्लस 3, माइनस सर 3 नॉट प्लस 3। हाँ, -3 विल बी 2 म्यू -3, और जेड का माइनस म्यू प्लस। अब देखो y की वैल्यू तुमको पता है, यहाँ पे डायरेक्ट y वाले को कंपेयर कर लो। -1 इक्वल टू कितना म्यू आ जाएगा? 2 म्यू -3, तो 2 इक्वल टू 2 म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू ऑलरेडी नोन है बेटे, तो y वाले को y वाले से कंपेयर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है सर। क्लियर है? अब किसी एक में रख के एक्स वाई जेड निकाल लो, म्यू हमको मालूम हो गया है। तो ये कितना आ गया हमारा एक्स वाई जेड? 1 -1 -1 प्लस 3 2। ठीक है, लेमडा हम निकालेंगे ही नहीं, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब एक लाइन हमको ऐसी ड्रा करनी है जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। अब ऐसा तो 2D में पॉसिबल नहीं है दिखाना, लेकिन हम ये मान लेते हैं ये लाइन जो है, इसका कलर चेंज करके ड्रा करते हैं ना। ये जो रेड वाली लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, ये कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस पे भी परपेंडिकुलर है और ये येलो पे भी परपेंडिकुलर, दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाली रेड वाली लाइन। ठीक, तो ये इसका डायरेक्शन वेक्टर बी जो निकलेगा वो बी क्या होगा? बी इक्वल टू B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, क्योंकि B1 क्रॉस B2 जो है वो बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर B1 एंड B2, दोनों पे परपेंडिकुलर होता। अगर इसको 1 मान लें हम, इसको 1 माने, किसी को मान लो, ये L1 है, ये L2 है, ये L2 है, तो इसका B1 और इसका B2। ठीक है, तो B जो है दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। फिगर पे क्लियर है बेटा एवरीथिंग? तो बचा कुछ क्या हमें B निकालना। B क्या है? B1 क्रॉस B2 है, वो भी कर लो, I J K। ठीक, B1 कितना है बेटे? बोलो जल्दी से। B1 आपको कहाँ मिलने वाला है? 3 0 B1 यहाँ एंड मिलेगा। हाँ, तो कितना -1 मिलेगा? 3 0 -1, 3 0 -1। B2 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ये B2 मिलेगा 1 2 -1। अब इससे निकाल दो जल्दी से, वेक्टर बी कितना आ गया? वेक्टर बी कितना आ रहा है? I 0 एंड प्लस 2, 2I माइनस J, ये गया -3 प्लस 1, माइनस -2 आएगा, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, +2J और प्लस K, तो ये गया 2 3 6 +6। ठीक है, 2 कॉमन है, कॉमन वाला लैम्डा में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, I प्लस J प्लस 3K। ठीक, ये हो गया। और वेक्टर ए कौन होगा? वेक्टर ए एक्स वाई जेड देगा, ये वेक्टर ए देगा कितना? 1 -1 और 2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो बननी है वो हो जाएगी R इक्वल टू A प्लस लेमडा बी, लेमडा बी। ये जो 2 हमने कॉमन निकाला है यहाँ पे हमने बेटे, ये जो 2 कॉमन निकाला है हमने, ठीक, ये वाला 2 ग्रीन वाला, इसको हम लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करके नया लेमडा मान लेंगे। ठीक, तो
r इक्वल टू ये हो जाएगा, ये है हमारा a, तो i माइनस j प्लस 2k, ओके, तो प्लस लेमडा नया कांस्टेंट है, यहां का लेमडा और यहां का लेमडा डिफर है, ठीक है, एक ही नहीं है लेमडा, और ये डायरेक्शन वेक्टर i प्लस जे प्लस 3k, तो उसकी सारी बात, ये लेंथी क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ही क्वेश्चन से 2-3 चीजें पूछना, ठीक है बेटे, तो होप दैट ये समझ में आया होगा, ठीक, तो अभी आज का लेक्चर एंड करते हैं बेटे, ओके, Yes. और अगर कुछ डाउट रहा तो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को वापस से, ठीक है, आप बताइएगा, सोल्यूशन भी अवेलेबल है बिलो, और कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर कर लेंगे, ठीक। Yes, sir.